Hi guys, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. Guys, कुछ सोल पर्पस रीडिंग्स की रिक्वेस्ट थी सिंस लास्ट 1 मंथ एंड आज हम 6 रीडिंग्स करने वाले हैं. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी सीरियल नंबर वाइज किस किस की रीडिंग किस सीरियल में है एंड यू कैन ऑफ कोर्स गो अहेड with the readings. And I'm very sorry for the background disturbance. Dogs are barking since it's night. So I was completely busy for the entire day. I wish I could do the readings in the daytime, but it wasn't possible due to my hectic schedule, and now we are doing it. So let's begin without any more delays. Um, so, guys, first reading. Let's smudge. One second. गाइस, जब आप कार्ड्स यूज करते हैं ना, तो या तो इनको ऐसे स्मज कर सकते हो आप, और या फिर यू कैन टैप दीज लाइक दिस. तो इसकी नेगेटिव एनर्जी निकल जाती है या ओल्ड एनर्जीज जो स्टक होती हैं इनमें वो निकल जाती हैं एंड एनर्जी इज रिन्यूड. सो कभी भी आप कार्ड्स यूज़ करें तो आपको पहले उन्हें स्मच करना है या टैप करना है एंड देन यू कैन यूज़ इट. फाइन. सो फर्स्ट रीडिंग इज फॉर मिस शगुन श्रीवास्तव. Okay, let's see. Okay, fine. Any more card wants to come? No. Okay. So, Shagun, you have got 2 cards. First card is Restaurateur and another card is First Responder. तो Restaurateur card जो आपका है that comes in the segment of entrepreneurship, और जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर कार्ड है दैट कम्स इन द सेगमेंट ऑफ प्रोटेक्शन. ठीक है, तो let me read these cards first for you. Restaurateur cards say, are you aware of all the people involved in bringing food from farm to table? Focus your awareness on being grateful for all the people involved in the process of serving food. Become more conscious when you frequent your food and favorite eating establishments. Integration and situational awareness are the key. And your first responder card says, are you often the first person to respond and take action when an emergency arises? Deal with any situation in a calm and confident manner. Preparedness is the key. Maintain a fit and healthy body to ensure optimal performance and endurance when the need arises. Shagun Srivastav, while picking your cards, मुझे एनर्जी आई about animal like animal welfare sort of, right? तो आपका जो life purpose है that is going towards animal welfare. सो एज अ रेस्टोरेंटियर इट डजेंट मीन कि आपका कोई रेस्टोरेंट होना चाहिए या आप किसी रेस्टोरेंट में काम करते हो. इट्स नॉट नेसेसरी. इफ़ यू आर वर्किंग as a restaurateur or something, that's well and good, but when we talk about life purpose, then this card says that you need to serve food to people. अगर आप इस काम में हैं तो you can serve free food to the needy, hungry people on street and animals on street.
और अगर आप इस काम में नहीं हैं तो भी यू हैव टू सर्व फूड टू एनिमल्स एंड पीपल ऑन स्ट्रीट। एंड पर्टिकुलरली मुझे एनिमल्स की वाइब आपके कार्ड से आ रही थी। सो what I believe is that आपका जो basic purpose है that is for animals. You have to serve food to needy, hungry animals on street. तो for sure you have to take care। जो भी आप food cook करेंगे वो बहुत ही carefully cook होना चाहिए because it's very important as you understand। साफ फूड होना चाहिए, क्लीन फूड एंड वाटर एक्चुअली हर लिविंग बीइंग का हक होता है। एंड व्हेन वी आर इनटू दिस लाइफ पर्पस, या हम किसी को भी इन जनरल भी अगर हम खाना खिला रहे हैं, दैट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर दैट द फूड इज़ क्लीन, इट्स हाइजीनिक एंड इट इज़ कॉन्शियसली कुक्ड। ऐसा नहीं कि उसमें लाइक कोई भी इशू हुआ फूड के साथ और हम अच्छा करने जा रहे हैं और कुछ गलत हो गया हमसे। सो दैट शुड नेवर हैपन, right? So this is the thing in this card. And another card is the card of first responder, जो ये कहता है कि क्या आप इस तरह के पर्सन हैं जो कोई भी इमरजेंसी या किसी को प्रॉब्लम में देखते हुए सबसे पहले रिस्पॉन्ड करता हो? डू यू फील बैड और आप उस सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं इनटू अ पॉजिटिव वन, इनटू अ गुड वन, है ना? या आप उस सिचुएशन से डील कर सकते हो एक काम एंड कॉन्फिडेंट मैनर में, या आप तभी कर सकते हैं बेसिकली जब आप प्रिपेयर्ड हो इन चीज़ों के लिए, जब आप में इतना कॉन्फिडेंस हो ऑलरेडी एंड यू नो दैट व्हाट आई एम गोइंग टू डू। एंड यू जस्ट नीड टू मेंटेन अ फिट एंड हेल्दी बॉडी। क्योंकि सी जब भी आप कोई लाइफ पर्पस करने जाते हैं, डेफिनेटली इट आस्क्स फॉर अ लॉट ऑफ एनर्जी, मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल एनर्जी। क्योंकि आप दूसरों को प्रॉब्लम में भी देख रहे होते हैं, आप उनको प्रॉब्लम से निकालने की कोशिश भी कर रहे होते हैं। यू ट्राई टू फूड सर्व करने के अलावा भी यू ट्राई टू लाइक मेक देम हैप्पी। यू वांट कि वो और स्टार्व ना करें, वो और स्ट्रगल ना करें, उनको कम से कम प्रॉब्लम हो। और इन केस कोई आप उनकी एडिशनल हेल्प भी कर सकते हैं तो यू कैन डू। तो this card is for protection. So you also need to protect street animals and the people who need your protection. But basically street animals, right? And जब भी उन्हें कोई disease है, you can provide them with the medicines. कोई भी उनको चोट लगी है, you can help them out by taking them to the vet, या उनकी फर्स्ट एड करके उनको कोई मेडिसिन लगा के, if they are ill you can give them medicines। उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करिए। इफ़ पॉसिबल यू कैन क्रिएट स्मॉल शेल्टर्स फॉर देम जहाँ पे वो वेदर की मार से एटलीस्ट बचे रहें। या छोटे पप्स होते हैं, उन्हें बड़े पप्स कई बार बहुत ज़्यादा डैमेज पहुँच जाते हैं, तो वो उनसे सेफ़ रहें। कुछ ऐसा शेल्टर उनको प्रोवाइड कर सकते हो। उनको विंटर्स में यू कैन गिव देम क्लोथ्स, समर्स में यू कैन मेक श्योर कि वाटर फूड उनको मिलता रहे टाइम से, सो दैट दे वोंट बी डिहाइड्रेटेड। जो भी उनकी प्रोटेक्शन के लिए हो सकता है, बेसिकली you have to provide to them. So you need to protect them and serve them food। एंड I'll suggest you कि कोई भी स्ट्रीट पे जो किड्स होते हैं या नीडी पीपल होते हैं या एनिमल्स होते हैं, you can serve all of them। बट बेसिकली आपके कार्ड से when I picked your cards, animals were all around my mind। So I'll suggest basically आपका कार्ड जो है वो एनिमल वेलफेयर से रिलेटेड है। So this is your life purpose, Miss Shagun Srivastava। Thank you so much, and we'll go for the next reading now. Next reading is for Miss Namrata Pawar.
I believe this card wants to come. Two more cards have come. Let's take these cards. These are total three cards, but let's take these since they have come out themselves. And okay, let's see. Miss Namrata Pawar. Namrata, your first card is related to chef, which says, "Are you fully present during food preparation, or are your thoughts elsewhere? Observe your thoughts and stay in the moment with each vegetable you cut and each meal you prepare. Maintain a grateful attitude for all it took to bring food to your kitchen." Next card is related to accountancy, um, which comes in the segment of finance. And this card says, "Are you a numbers person? Take a look at your assets and liabilities and find a balance in the way money flows in and out of your life. Maintain mental equity and focus when you work with numbers. Attention to detail is important today and always." And a third card is about guardian. So, this card comes in the segment of protection basically, and this card says, "Are you guided to provide safety, encouragement, and support to those in need? Step into your role as a guardian, be an advocate on behalf of a child, elder, or someone with mental or physical challenges. Help others meet their needs when they cannot do so for themselves." So, Namrita, together, your cards say that it's quite similar to the life purpose of Miss Shagun Srivastav, but there is something additional as well. Let me explain to you. Namrita, you have to provide food. आपको खाना देना है. शगुन का जो पर्पस था, that was basically for animals. आपका purpose is basically for people. बट दैट डजेंट मीन कि आप एनिमल्स को सर्व नहीं करोगे. यू हैव टू सर्व एनिमल्स एज वेल, बट बेसिकली योर पर्पस इज फॉर नीडी पीपल ऑन स्ट्रीट, ओके, या कहीं भी. तो आपको फूड सर्व करना है. जो भी नीडी, हंग्री, पुअर पीपल होते हैं, दोज लिव ऑन स्ट्रीट, जिनको खाना पीना नहीं मिल रहा होता है, और देर आर स्ट्रीट किड्स, there are street old age people, and street animals as well. Yeah, there are some handicapped people which need help, जिनको, those who need food, जिनको uh, जिनके पास बेसिकली फूड एंड वाटर तो होता नहीं है, पैसा नहीं होता है, लेकिन साथ में फिजिकल एबिलिटी भी नहीं होती है, एंड दे आर वेरी मच हेल्पलेस अबाउट इट. तो यू नीड टू हेल्प देम. फाइन. एंड यू हैव टू सी कि उनकी लाइफ में क्या इश्यूज़ हैं, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा है. अगर कहीं भी कोई भी उनको प्रॉब्लम कर रहा है, तो यू नीड टू रेज योर वॉइस अगेंस्ट इट. आपको जैसे भी पॉसिबल हो उनको ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करनी है. सेफ्टी इन द सेंस कि अगर उन्हें कोई तंग कर रहा है, यू हैव टू रेज योर वॉइस अगेंस्ट इट. आपको उस बारे में एक्शन लेना है. प्लस वेदर से आप उन्हें सेफ्टी प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है, बाय like distributing blankets in winters and all, and of course sanitizers and like soaps, या फिर summers में you can see that they receive clean food and water. इस तरीके से आप उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं वेदर के अगेंस्ट भी. एंड यू हैव टू गिव देम इमोशनल सपोर्ट. आपको अपने अनकंडीशनल लव से उन्हें सपोर्ट देनी है. कोई भी बच्चा है, स्ट्रीट किड्स होते हैं, या बड़ा है, या मेंटली चैलेंज्ड लोग होते हैं, फिजिकली चैलेंज्ड लोग होते हैं, यू हैव टू बी देयर गार्जियन. आपका गार्जियन का रोल है. आपको उनको गार्ड करना है, उनको प्रोटेक्ट करना है, आपको उन्हें फूड प्रोवाइड करना है, वाटर प्रोवाइड करना है. यू हैव टू सर्व देम विद इमोशनल
food as well, right? Emotional food means आपको उनके इमोशंस पर भी मरहम लगाना है, राइट? एंड जो लोग भी अपनी हेल्प खुद से नहीं कर पा रहे हैं, या स्ट्रीट एनिमल्स हैं, स्ट्रीट किड्स हैं, स्ट्रीट पीपल हैं, यू हैव टू हेल्प देम, राइट? And your third card is related to accountancy, as I said. तो इट सेज इट्स नॉट नेसेसरी कि आप अकाउंटेंट हो, या आपको अकाउंट्स की नॉलेज हो, या आप इसी किसी फील्ड में हो. इफ़ यू आर इन सच अ फील्ड, देन यू नीड टू एनहेंस योर स्किल्स, और आप इस फील्ड में और काम करिए. यू कैन हेल्प पीपल विद योर अर्निंग्स, राइट? एंड यू कैन हेल्प दोज इन नीड, जिनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज चाहिए हो और आप उन्हें कोई नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं अकाउंट्स की. यू कैन हेल्प दोज एज वेल. Otherwise, basically, what I feel is that this card is about numerology. So if you know numerology, that's well and good. If you don't know, you can learn numerology and you can start it as your part-time work, part-time job, or something. And जो भी earnings आएंगी उससे you can help these street animals and street people, street kids, and mentally and physically challenged people, right? तो न्यूमरोलॉजी जब आप करेंगे, ऑल्सो डोंट फॉरगेट कि आप ये जो विद्या है ये भी आगे लोगों तक पहुंचाएं, स्प्रेड करें. जब आप सिखाएंगे लोगों को न्यूमरोलॉजी फर्दर, यू विल गेट सम अर्निंग. देन उस मनी से आप ये जो है अपना लाइफ पर्पस कर सकते हैं, बाय प्रोवाइडिंग फूड एंड वाटर एंड सपोर्ट एंड सेफ्टी टू दोज इन नीड. जैसे कि स्ट्रीट्स पे बहुत सारे हेल्पलेस लोग होते हैं. सो दिस इज़ योर लाइफ पर्पस, मिस नम्रता पवार. Thank you so much, Namrita. Let's start the next reading. Next reading is for Miss Shivanti. I believe her full name is Shivanti Joshi, but anyways, Shivanti, here is your reading. Let's start. So you have got two very different cards, Shivanti. First card is about compositions. Another card is police officer. Uh, your composer card says, do you feel in harmony with your thoughts and the world around you? Allow sound and music to help you. Remember why you are here on earth at this time. Use your imagination to fashion harmonious vibrations and bring joy and happiness into your life. Your police officer card says, is it important that everyone follows the rules and regulations established by society and the law? Police your thoughts, words, and actions as you go deeper into your intentions and motives. Establish and maintain a sense of safety and protection for yourself and those around you. Right? So, let me see these cards. So, Shivanti,
you must be working with somewhere in the field of justice. या तो आप जस्टिस से रिलेटेड किसी फील्ड में हो, एडवोकेसी में हो, या पुलिस लाइन में हो सकते हो, या जस्टिस से रिलेटेड किसी फील्ड में हो सकते हो, या इट कैन बी योर गॉड गिफ्ट। ओके, अगर नहीं भी आप वर्क करें इससे रिलेटेड तो भी। एंड योर कंपोजर कार्ड इज लाइक इट बेसिकली बिलोंग्स टू द आर्ट सेगमेंट। तो आप कॉम्पोजिशंस में भी हो सकते हो, या सम सॉर्ट ऑफ आर्ट में आप हो सकते हो। एंड कॉम्पोजिशन बेसिकली इसलिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है समझना, बिकॉज इट इज़ अबाउट हारमोनियस वाइब्रेशंस। और ये साउंड एंड म्यूजिक का कार्ड है बेसिकली। सो दैट आर्ट इज़ नॉट अबाउट पेंटिंग एंड ऑल, दैट आर्ट इज़ अबाउट म्यूजिक एंड कॉम्पोजिशंस। तो शिवांती, इफ़ यू आर इनटू कॉम्पोजिशंस या म्यूजिक से रिलेटेड कुछ आप में स्किल है, या आपने सीखा है, आपको शौक है, या आप इस फील्ड में काम करते हैं, या आप इसे सीखना चाहते हैं फर्दर, then you have to compose music, songs, poetry, anything you have to compose जो भी आपके दिल में आता है। when you see people in need, when you see people जिनके साथ कुछ injustice हुआ होता है, जो भी आपके मन में ख्यालात आते हैं, जब भी आप लोगों को देखते हो कि उनकी ज़रूरत फुलफिल नहीं हो रही है, गरीबी है, इनजस्टिस है, इनइक्वालिटी है, परेशानी है, हेल्पलेसनेस है, रोज़मर्रा की जो लाइफ में जो इश्यूज़ होते हैं, सब कुछ होते हुए भी पर्सन उन इश्यूज़ की वजह से दुखी रहता है बहुत बार। तो ये सब जो भी चीज़ें हैं, या कोई किसी के साथ कुछ इमोशनल मिसहैपनिंग्स हैं, वो नहीं उससे ओवरकम कर पा रहे, जो भी रेगुलर के इश्यूज़ होते हैं एक पर्सन की लाइफ में, एंड बियॉन्ड दैट जो भी सोसाइटी में बहुत चीज़ें चलती हैं, लाइक कुछ अंधविश्वास से रिलेटेड हो सकता है, कुछ किसी पर्टिकुलर लाइक ग्रुप ऑफ पीपल की डोमिनेशन हो सकती है कुछ हेल्पलेस लोगों पे, या इट कैन बी अबाउट नीडीनेस, हेल्पलेसनेस, पॉवर्टी, इट कैन बी अबाउट एनीथिंग चैलेंजिंग, एनीथिंग फुल ऑफ स्ट्रगल्स। तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आपके मन आप देखते हो, आपके मन में कौन से थॉट्स आते हैं, क्या ख्याल आते हैं, उससे रिलेटेड आप क्या कर सकते हो उन लोगों के लिए, जो भी बेस्ट आप कर सकते हो एफर्ट्स, यू हैव टू हेल्प पीपल विद दैट। आपको उनके लिए जस्टिस प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, आपको उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। सेकेंडली, आप अपने जो भी थॉट्स हैं, इफ़ यू आर रिलेटेड टू द म्यूज़िक, तो आपको कंपोज करना पड़ेगा उन थॉट्स को इन द फॉर्म ऑफ म्यूज़िक, लाइक सॉन्ग्स, पोइट्री, शायरी, एनीथिंग। ठीक है, तो वो कॉम्पोजिशन के ज़रिए भी आप लोगों को जस्टिस दिला सकते हो। अपना जो आप क्रिएशन करोगे कॉम्पोजिशन का, और अपने विचार सामने रखोगे इस सोसाइटी के इस कमज़ोर तबके के लिए, इस कमज़ोर पार्ट के लिए, तो कहीं ना कहीं इन लोगों तक इनके जो हालात हैं उसके बारे में नॉलेज जाएगी। लोग जानते हैं इस बारे में, बट बेसिकली लोग लाइक ब्लाइंड फोल्ड अपनी आंखों पे बांध के घूमते हैं। बट प्रॉब्ली आप जब ऐसी क्रिएशन करोगे जो लोगों के दिल को छू जाए, तो लोग प्रॉब्ली वो ब्लाइंड फोल्ड हटाना चाहेंगे अपनी आंखों से, और इस जो कमज़ोर जो सेगमेंट है सोसाइटी का, इनकी हेल्प करना चाहेंगे। तो यू हैव टू कंपोज समथिंग लाइक दैट, जिससे इन लोगों को जस्टिस मिल सके। ओके, एंड I'll give you a tip. You can start your own channel once you start composing things. आप अपनी चीज़ें लोगों तक पहुंचा सकते हैं थ्रू योर ओन चैनल, या फिर किसी भी पब्लिकेशंस को कांटेक्ट करके, या फिर अपना कोई भी सोशल मीडिया पे पेज बना के, एंड लाइक उसको पब्लिक कर सकते हो, या however you like it to like be viral among people. So you can do it like this, and for sure, if you can do additional things for people, for needy people, helpless people, challenged people, and of course needy animals, helpless animals, and challenged
लिविंग बींग्स, या कहीं भी आप कुछ भी गलत होते हुए देख रहे हो, आप देख रहे हो कि कहीं भी लॉ टूट रहा है, कोई किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी कर रहा है, चाहे इंसान के साथ हो रही हो या जानवर के साथ हो रही हो, जो भी आप बेस्ट एफर्ट्स कर सकते हो उस चीज़ में अपनी आवाज़ उठा के वो आपको करना है। प्लस बेसिक जो आपका लाइफ पर्पस रहेगा दैट विल बी कॉम्पोजिशन, एंड बाय कंपोजिंग यू हैव टू ब्रिंग जस्टिस टू दीज पीपल। ठीक है, और कॉम्पोजिशंस में अगर आप हो एंड यू आर अर्निंग समथिंग ऑलरेडी, या आप अपना चैनल स्टार्ट करते हो एंड यू स्टार्ट गेनिंग अर्निंग्स, देन उस अमाउंट से भी आप लोगों को एडिशनल हेल्प कर सकते हैं फॉर श्योर। एंड दिस इज़ योर लाइफ पर्पस मिस शिवांती। थैंक यू सो मच। Next reading is for Miss Riya Kriti. Any more card? So Riya Kriti, you have got two cards. One is about building. This is the engineer card, and another card is the first responder. Again, it's about protection. So Riya Kriti, your first card says, do you have many things to figure out and get accomplished? Take an organized, grounded approach to help you maintain focus using sound scientific solutions. A clear mind with focused intention provides a strong foundation for accomplishments. Your first responder card says, are you often the person to respond and take action when an emergency arises? Deal with any situation in a calm and confident manner. Preparedness is the key. Maintain a fit and healthy body to ensure optimal performance and endurance when the need arises. So, Riya Kriti, together your cards say, see, the engineer card is not always about engineering. You can be an engineer, maybe you're working with some sort of field जो कि बिल्डिंग से रिलेटेड हो या क्रिएशन से रिलेटेड हो. इट कैन बी अबाउट समथिंग रिलेटेड टू इंजीनियरिंग एज वेल, बट इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि जो इंजीनियर कार्ड है दैट इज़ अबाउट इंजीनियरिंग, दैट इज़ ऑल्सो अबाउट क्रिएटिंग समथिंग, राइट? तो ये योर कार्ड इज टेलिंग यू टू क्रिएट समथिंग फॉर्म जिसमें कि जो भी आपके इमोशंस होते हैं, व्हेन यू सी समबडी हेल्पलेस, जब भी आप देखते हैं कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, उसमें सोल्यूशन प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, उसमें एक्शन लेने की ज़रूरत है, हेल्प प्रोवाइड करने की ज़रूरत है. बहुत सारे लोग हैं जो खड़े खड़े मुंह देख रहे हैं, एंड यू फील कि हाँ, इस सिचुएशन में मुझे रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत है, इसमें एक्शन लेने की ज़रूरत है. और कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है जो हार्ड होती है, सो यू हैव टू डील इन अ लाइक यू फील लाइक इसमें काम एंड कॉन्फिडेंट मैनर में मुझे एक्शन लेना पड़ेगा, मुझे प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा इस चीज़ के लिए हमेशा. तो देर आर अ लॉट ऑफ सिचुएशंस लाइक दिस व्हेन यू सी सम हेल्पलेस एनिमल्स और पीपल, some needy people, needy kids, some challenged people, challenged animals as well. ठीक है, तो अगर इस तरह के ख्याल जैसे जो आपके मन में आते हैं जब भी आप किसी को देखते हैं बीइंग अ स्पिरिचुअल पर्सन, तो you have to create a team of people, you have to create a sort of organization
जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ही बनेगी, बट एज ऑफ नाउ यू नीड टू क्रिएट अ टीम ऑफ पीपल, जहाँ पे आप लोगों को, जो नीडी लोग हैं, जो हेल्पलेस लोग हैं, जो पुअर पीपल हैं, या नीडी एनिमल्स हैं, चैलेंज्ड एनिमल्स हैं, हेल्पलेस एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, जिनको भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़े, जिनको भी हेल्प की ज़रूरत पड़े, यू हैव टू प्रोवाइड देम हेल्प, यू हैव टू प्रोवाइड देम प्रोटेक्शन। और इस चीज़ के लिए आपको अपनी फिज़िकल बॉडी को बहुत ही हेल्दी रखना पड़ेगा, फिट रहना पड़ेगा आपको, बिकॉज इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ योर एनर्जी। बहुत फिजिकल लेबर होती है इस चीज़ में। एंड ऑफ कोर्स इमोशनल एनर्जी हमारी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, जाने अनजाने में, या चाहते हुए या ना चाहते हुए। एंड मेंटली वी ऑलवेज नीड टू बी प्रिपेयर्ड। ये नहीं कि आज नहीं, अभी नहीं एंड ऑल, और ये सब चीज़ें, या मैं एलर्जिक हूँ इस चीज़ से एंड ऑल। यू हैव टू मेंटेन अ फिट एंड हेल्दी बॉडी एज दिस कार्ड सेज। एंड अगर आपको प्रॉपरली अपना लाइफ पर्पस करना है, एक अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, जो भी आप पर्पस लेके आए हैं धरती पे, सो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड ऑलवेज। और कोई भी सिचुएशन हो, उसको काम एंड कॉन्फिडेंट मैनर में डील करिए। But it all depends on the situation, on the kind of situation, or it's very important for you, like this is your main thing in the card कि कहीं भी कोई भी इमरजेंसी है, या देर इज सम सॉर्ट ऑफ सिचुएशन जहाँ पे किसी को अर्जेंट हेल्प की रिक्वायरमेंट है, कोई बहुत प्रॉब्लम में है, लाइक रोड पे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं कई बार एनिमल्स के या कुछ लोगों के, एंड नो बडी हेल्प्स हिम। ठीक है, सो यू हैव टू बी द फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन दैट केस, यू हैव टू हेल्प देम। दिस इज योर पर्पस बेसिकली। एंड ऑफ कोर्स इंजीनियर कार्ड सेज दैट यू नीड टू क्रिएट अ टीम, बट पहले अपने आप से स्टार्ट कीजिए, अपने लेवल पे स्टार्ट कीजिए। अगर आप पे कुछ फ्रेंड्स या अपनी जो ये स्पिरिचुअल फैमिली ही है, इन्हीं के कुछ लोग आपको हेल्प करना चाहें, या आप किसी को ज्वाइन करना चाहें, या कोई आपको ज्वाइन करना चाहे, यू गाइस कैन क्रिएट अ टीम ऑफ लाइक हेल्पर्स, वॉलंटियर्स टुगेदर, और एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्टार्ट कीजिए। क्रिएट दैट टीम, दैट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हेल्पलेस, नीडी एंड चैलेंज्ड लोगों की हेल्प करे, उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, वेदर से भी, और कुछ ऐसे डोमिनेंट फोर्सेस से भी, कुछ ऐसे लोगों से भी जो उनके साथ इंजस्टिस करते हैं, और उनके जो हालात हैं उनसे भी उनकी सेफ्टी करनी है, उनसे भी उनकी प्रोटेक्शन करनी है, उनके हालातों में सुधार करके, उनको हेल्प करके, उनको इमोशनली आप उनकी बात, लाइक यू कैन सर्व देम इमोशनली। जब आप उनकी बात सुन लेते हैं, एक कंधा मिल जाता है उन्हें रोने के लिए, या कोई मिल जाता है जिससे वो अपने मन की बात कह सके, वो किसी के आगे रो सके, किसी को अपना दुख शेयर कर सके। जब कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं होता, जब कोई भी उन पर ट्रस्ट नहीं कर रहा होता, जस्ट बिकॉज कि उनके हालात अच्छे नहीं हैं। ठीक है, और जो एनिमल्स होते हैं फॉर श्योर वो बेजुबान होते हैं, वो आपके आगे कुछ कहेंगे नहीं, वो रोएंगे नहीं, लेकिन बीइंग अ स्पिरिचुअल पर्सन यू नो कि जो आँखें होती हैं वही सोल का आईना होती हैं। तो जब आप इन ज़रूरतमंद बेज़ुबान जानवरों की आंखों में देखेंगे ना, तो उसके बाद आपको उनसे कुछ कन्वर्सेशन की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। आप खुद ही सब समझ जाएंगे, आप खुद ही उनके साथ कन्वर्सेशन कर पाएंगे, आप खुद ही कम्युनिकेट कर पाएंगे, आप सब कुछ समझ जाएंगे। आप लैंग्वेज की ज़रूरत ही नहीं रहती है जब आंखों से कम्युनिकेशन होने लग जाए, राइट? तो दिस इज़ योर लाइफ पर्पस, मिस रिया कृति। थैंक यू सो मच। Next reading is for Miss Nidhi Khanna.
Some card wants to come. I believe this is it. Okay, let's take this card. किसी और को आना है भाई तो आ जाओ. It's too late. जल्दी जल्दी से आ जाओ अगर किसी और को आना है तो. नहीं आना है किसी और को. Okay, बैठो अपनी जगह पे. And fine. So, Miss Nidhi Khanna, you have got two cards, broker and historian. Historian card belongs to the segment of investigation, and broker card belongs to the segment of finance. Both are two very different cards. Let me read these for you. Your historian card says, are you interested in human history, artifacts, and archaeological sites? Improve your empathy for the present human condition through an understanding of the wisdom of those who once walked on a similar path. Looked at belief systems and past situations to uncover awareness of karmic lessons. Okay. And your broker card says, do you have a natural skill for bringing people together for business deals? Embrace your talents for orchestrating mutually beneficial situations. Be confident in your ability to identify the needs of all parties and make the best recommendations to close the transaction. Okay, let me read these once more. Um, Miss Nidhi, you can be in any of these professions, particularly if you're in finance related profession. um, इन्वेस्टमेंट्स में है, बैंकिंग में है, फाइनेंस में है, ब्रोकरेज में है, तो यू कैन एनहांस योर स्किल्स सो दैट जो भी अर्निंग्स हो आपकी उनसे आप लोगों की हेल्प कर सकें. बेसिकली टुगेदर इफ़ वी टेक बोथ योर कार्ड्स, तो ये जो कार्ड है ये कहते हैं कि ब्रोकर कार्ड जो है दैट इज़ बेसिकली अबाउट काउंसलिंग. I feel because जिस तरह से ब्रोकर होता है वो दो टीम्स का, दो पार्टीज का कुछ ना कुछ बेनिफिट कराता है, एंड आउट ऑफ दैट जो उनको लाइक कमीशन मिलता है, एक कुछ परसेंटेज मिलता है हेल्प का, दे टेक इट, ठीक है, एज देयर अर्निंग. ओके. एंड इन द सिमिलर वे जब आप काउंसलिंग करते हैं तो आप सामने वाले पर्सन का भी विजडम बढ़ा रहे होते हैं और आप उनका लाइक उनकी परेशानियां दूर कर रहे होते हैं. एंड प्लस जो भी उनसे रिलेटेड लोग हैं ऑटोमेटिकली उन पे भी आपके ज्ञान का, आपके विजडम का, आपकी नॉलेज का इम्पैक्ट क्रिएट होता है. ठीक है. तो यू इम्पैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल. जब आप अपना ज्ञान, अपना विजडम लोगों तक पहुंचाते हैं, आप किसी एक पर्सन को वो विजडम देते हो, वो ऑटोमेटिकली बहुत सारे लोगों तक पहुंचता है, चाहे वो ऑरा के फॉर्म में ही क्यों ना हो. लाइक जो पर्सन आपसे विजडम लेके गया है, व्हेन दे मेक दोज टीचिंग्स एप्लीकेबल इन देयर लाइफ, उनका ऑरा स्ट्रांग होता है. उनके ऑरा के अंडर जो लोग आते हैं, उनकी फैमिली, उनका घर, उनकी नेबरहुड, तो वो लोग सारे भी उस विजडम में, उस कॉन्शियसनेस में आने लगते हैं ऑटोमेटिकली, बिकॉज अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस जो होती है वो हमेशा स्प्रेड होती है. तो this way you have to work. Okay, so your broker card basically it tells about counseling. और जब आप काउंसल करेंगे लोगों को तो ऑफ कोर्स यू विल बी अर्निंग मनी, और उस मनी से भी आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं जो भी नीडी, हेल्पलेस, चैलेंज्ड और लाइक स्ट्रीट पीपल, स्ट्रीट किड्स, स्ट्रीट एनिमल्स,
एनी पीपल लाइक ओल्ड एज पीपल होते हैं, ओल्ड एज होम्स में होते हैं या स्ट्रीट पे होते हैं, या एनी मेंटली फिजिकली चैलेंज लोग होते हैं इन हैंडीकैप्ड होम्स या और ऑन स्ट्रीट, राइट? और या फिर ऑर्फनेजेस में बच्चे होते हैं या स्ट्रीट पे ऑर्फन बच्चे होते हैं। तो बेसिकली या फिर ऑफ कोर्स एनिमल शेल्टर्स में एनिमल्स होते हैं या स्ट्रीट पे एनिमल्स होते हैं जो कि बहुत ही हेल्पलेस, हंग्री, चैलेंज्ड और नीडी होते हैं बेसिकली, जिनको ना तो कोई फिजिकल सपोर्ट होती है, ना कोई मेंटल सपोर्ट होती है, ना इमोशनल सपोर्ट होती है, और ऊपर से फूड एंड वाटर तक नहीं होता है, बल्कि फॉर द लाइफ टाइम दे रिसीव रिजेक्शन ऑफ पीपल। ठीक है। एंड योर हिस्टोरियन कार्ड सेज कि बेसिकली जब भी कोई आपके पास काउंसलिंग के लिए आएगा, तो जैसे कि आर्कियोलॉजिस्ट नहीं होते हैं, जब वो आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे जाते हैं तो वो फैक्ट सर्च करने की कोशिश करते हैं, फैक्ट्स रिलेटेड टू कि ये जो भी चीज़ें उन्हें मिलती हैं या कोई साइट मिलती है तो ये कब का है, लाइक ये इसकी क्रिएशन कब हुई, क्यों हुई, किस तरह से आगे डेवलप हुआ होगा, कब ये चीज़ ख़त्म हुई होगी, इसका इम्पैक्ट क्या रहा होगा सोसाइटी पे, ये क्यों क्रिएट किया होगा एंड ऑल। ठीक है। तो इन द सेम मैनर जब आप काउंसलिंग करते हैं ना किसी की, तो आप अपना विजडम तो तब देंगे ना जब आप बेसिकली समझ पाएंगे उनकी प्रॉब्लम सुन के कि जो उनका इशू है उसका रूट कॉज क्या है, वो इशू आया कहाँ से, अगर उनके बिहेवियर में वो इशू है तो वो क्यों आया है, उनकी पास्ट में लाइफ कैसी रही है अभी तक की, या अगर उनका लाइक कोई बेसिक इशू है विच दे आर अनेबल टू क्योर, तो यू हैव टू सी के बेसिकली उसका रूट कॉज क्या है, दैट इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड थ्रू डीएनए, या वो फैमिली इश्यूज से आ रहा है, या कोई वो फ्रेंड सर्कल की वजह से आ रहा है, या किसी और पास्ट लाइफ रीजन की वजह से आ रहा है, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। सो अंटिल एंड अनलेस यू डायग्नोज द डिजीज, आप जब तक रूट कॉज नहीं जान लेते किसी इशू का, किसी प्रॉब्लम का, यू कांट गिव सोल्यूशन, यू कांट गिव मेडिसिन, राइट? तो बेसिकली यू हैव टू इम्प्रूव योर एम्पैथी स्किल्स, ताकि आप जान सकें ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम को। कुछ काउंसलर सिर्फ समटाइम्स इट हैपन्स कि पीपल कॉन्टैक्ट दैम एंड दे कम सॉर्ट ऑफ डिससेटिस्फाइड, बिकॉज उनको लगता है कि जो उनकी प्रॉब्लम थी वो कहीं ना कहीं वो उस तरह से कन्वे नहीं कर पाए, और जिसके पास गए थे वो उसे पूरी तरह से समझ नहीं पाया उनकी बात। तो व्हेन यू डेवलप योर एम्पैथेटिक स्किल्स, तो आप उनकी बात को, चाहे वो उसे सही से एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे, आप उसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, आप उसको बहुत अच्छे से फील कर पाएंगे, राइट? एंड व्हेन यू विल बी एबल टू सेंस कि उनका इशू क्या है और उसका रूट कॉज क्या है, आप उनको तब उस चीज़ के बारे में सोल्यूशन दे पाएंगे, तब आप उनको अपना विजडम दे पाएंगे, आप उनको स्पिरिचुअल मेथड्स बता पाएंगे या स्पिरिचुअल नॉलेज दे पाएंगे कि कौन सा इशू किस तरह से हील किया जा सकता है। यू विल बी एबल टू हील देम बेसिकली, राइट? और ऑफ कोर्स आपको उनका जो बिलीफ सिस्टम है उसमें झांकना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा उनकी पास्ट सिचुएशन, उनकी कार्मिक सिचुएशंस, उनके जो कार्मिक लेसन्स हैं उनके बारे में, उनकी क्या थॉट्स है। लाइक कई बार क्या होता है कि लाइफ हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए हमारे आगे बहुत कुछ स्ट्रगल्स रख देती है, बेसिकली हमारी लर्निंग के लिए होता है, हम सीख भी जाते हैं, बट वी कैरी दोज पेन। हम लोग लेसन्स लेके आगे बढ़ने की जगह हम लोग वो पेन भी साथ में लेके आगे बढ़ते हैं, या फिर कई बार सिर्फ पेन ही साथ में लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। तो उस केस में वो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो पेन जब हम साथ में लेके आगे बढ़ते हैं, इट गेट्स ट्रांसफर्ड टू जनरेशन्स थ्रू आवर डीएनए, और वो धीरे धीरे करके सोल इतनी ज़्यादा डिप्लीट हो जाती है हमारी भी इन आवर नेक्स्ट लाइफ टाइम्स, और जो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स होती हैं उनकी भी, विच takes the form of rare diseases,
या मेंटल डिसऑर्डर्स, इमोशनल इश्यूज, डिप्रेशंस, पैदा हुए बच्चों को डिजीज़ होने लगते हैं बड़े बड़े, या बहुत ही कम एज में लोग जो है उनकी लाइफ बहुत कम एज की रह जाती है, अम, या बहुत ही कम एज में बहुत सारे डिजीज़ होने लगते हैं, डिप्रेशंस होने लगता है, एनीथिंग लाइक दैट। बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं, या फिर मेंटल इश्यूज़ हो जाते हैं, ट्रॉमास हो जाते हैं, या चीज़ों के बारे में नेगेटिविटी बहुत जल्दी उन्हें फॉर्म होती है, अनएक्सेप्टेबिलिटी होती है सिचुएशंस की, फियर बहुत ज़्यादा होता है, पैनिक अटैक्स आने लगते हैं, विच somehow impacts their entire life, and it impacts all aspects of their life, family life हो, professional life हो, उनकी personal life हो, everything gets impacted। और उसका असर फैमिली पे भी दिखता है, फिर वो लोग आगे उसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, वो लोग उन पेन्स में रहते हैं, और फिर वो भी उसी नेगेटिविटी को आगे गिफ्ट देते रहते हैं लोगों को, आगे वाली जनरेशन को, कि लीजिए हमने अपनी नेगेटिविटी आपको भी गिफ्ट कर दी, और जितने लोगों के कांटेक्ट में वो रहते हैं उनको भी वो वही गिफ्ट करते हैं। सो वी नीड टू स्टॉप ऑल दिस, एंड basically japa card है this belongs to the category of investigation, but investigation ऐसा नहीं है कि आपको कहीं CID बन के काम करना है, but it's like you have to find out the root cause of the problem of people, और आपको उनका जो बिलीफ सिस्टम है, जो भी उनके कार्मिक लेसन्स उनके साथ हुए, तो उससे रिलेटेड उनका बिलीफ सिस्टम क्या है, लेसन्स लेके आगे बढ़ रहे हैं या बस पेन ही आगे फॉरवर्ड करे जा रहे हैं, या पेन की गठरी उठा के घूम रहे हैं। तो यू हैव टू लुक इनटू दिस मैटर, एंड यू हैव टू प्रोवाइड देम काउंसलिंग एंड सॉल्यूशंस अकॉर्डिंगली, एंड दिस इज योर लाइफ पर्पस, मिस निधि खन्ना। थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट रीडिंग इज फॉर मिस जयश्री भोसले। Let's take this card. Let's take this one. Okay, Jayashri, you've got two cards, intuitive, which comes into the segment of investigation, and visionary, which belongs to the category of entrepreneurship. Your intuitive card says, do you just know things about people or situations without conscious reasoning? Embrace your intuitive nature. Believe yourself and trust your gut feelings. Look deeper and uncover information to aid yourself or others in restoring clarity and balance. Okay. And your visionary card says, have you noticed that you're able to see life from a higher perspective? It is time to embrace concepts that may seem far out at first. You have a brilliant mind and it craves stimulation. Take the time to explore beyond the outer limits of your own core belief systems. ये जो ब्रिलियंट माइंड वाला पार्ट है ना जयश्री, व्हेन दिस कार्ड केम, क्योंकि ये ब्रिलियंट माइंड इस कार्ड में लिखा है, विच केम लेटर व्हेन योर फर्स्ट कार्ड वाज फ्लिप्ड, आई जस्ट फेल्ट लाइक दैट your brain is quite brilliant, like you're able to see very deep within, and your intuition is very strong, I must say. Your cards also say that. ठीक है, तो जयश्री आपके जो कार्ड्स हैं वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि
Jayashri, your cards are about spreading spirituality, or you can say spreading consciousness and awareness. लोगों को काउंसलिंग करके या फिर लोगों के लिए बेसिकली जो भी स्पिरिचुअल बेस्ड वीडियोस हैं, जिनसे कि अवेयरनेस स्प्रेड हो सके, कॉन्शियसनेस स्प्रेड हो सके सोसाइटी में, जो भी अंधविश्वास या जो भी सोशल इश्यूज होते हैं, जो कि बहुत सारे इश्यूज सोशल प्रोग्रामिंग की वजह से ही क्रिएट हो जाते हैं इनफैक्ट, ये सब चीज़ें दूर करने के लिए, राइट? तो आपका बेसिकली आपका जो इंट्यूशन है, इट मस्ट बी ब्रिलियंट। आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा होगा। आपकी जो लोग जो बात कह रहे हैं, उसके बियॉन्ड जाके सिचुएशन को, उसके पीछे के रूट कॉज को समझना, उस कॉन्शियसनेस को समझना जिस वजह से कोई इशू क्रिएट होता है सोसाइटी में, वो आपकी एबिलिटी आई मस्ट से बहुत अच्छी होगी। इफ़ यू इवन डोंट नो अबाउट इट, तो प्लीज़ कीप ऑन डूइंग योर इनर वर्क, और इनर वर्क से ज़रूर हेल्प मिलेगी। यू विल गेन अ लॉट ऑफ क्लैरिटी, और आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगी, एंड you will be able to realize that this is your God gift, okay? अगर अभी तक आपने रियलाइज नहीं किया है तो। एंड जो भी आपकी इंट्यूटिव नेचर है, डोंट थिंक के यार मन खराब हो जाता है जब मैं देखती हूँ कि लोग बोल तो बहुत अच्छा रहे हैं, लेकिन आई कैन सेंस कि उनका जो उसके पीछे का मतलब है, या उनके पीछे उनकी जो इंटेंशन है, दैट इज़ नॉट गुड। तो मन खराब करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ योर पावर आफ्टर ऑल। यू कैन ईजिली नो द ट्रुथ, ठीक है? और इस चीज़ में दुखी होने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपको सच पता चल रहा है किसी के पीछे का, यू कैन ऑलवेज स्टे अवेयर, यू कैन मेक पीपल अवेयर, यू कैन मेक द एंटायर सोसाइटी, एंटायर वर्ल्ड अवेयर अबाउट इट, राइट? तो देयर इज़ नथिंग टू बी सैड अबाउट इट इफ़ यू एवर गेट सैड। एम्ब्रेस योर इंट्यूटिव नेचर। अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपनी गट फीलिंग्स को ट्रस्ट करिए। लॉजिकल ब्रेन से ऑफ कोर्स हमें वर्क करना पड़ता है, बट बीइंग spiritual people, we all need to balance our spiritual brain and the logical brain, ठीक है? बहुत सारे सिचुएशन में हम खाली स्पिरिचुअल वे में नहीं सोच सकते कि लाइक वी फील कि हाँ ऐसा हो रहा है, तो वो ऐसा बेसिकली बिहाइंड द सीन्स वो चीज़ चल रही होती है, एनर्जी उस हिसाब से वर्क कर रही होती है। बट इन अ लॉट ऑफ केसेस वी हैव टू सी कि लॉजिकली यहाँ पे क्या दिख रहा है, इधर क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है हमें, इस पे प्रैक्टिकली हम अभी क्या कर सकते हैं इस चीज़ को ठीक करने के लिए। और फाइनली जब एनर्जीज वो अपना वर्क करेंगी, तो जो हमारा स्पिरिचुअल माइंडसेट है वो हमें क्या कह रहा है, वी विल बैलेंस थिंग्स आउट अकॉर्डिंगली एज वेल, ठीक है? तो सब चीज़ें बैलेंस करके, जैसे कि वी से ना कि यिन एंड यांग एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, तो जो डार्क एंड लाइट है, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। क्योंकि डार्कनेस नहीं आती जब तक लाइफ में, तो हम लाइट की इम्पोर्टेंस को समझ नहीं पाते। जब तक कुछ बुरा नहीं होता, हम अच्छाई को समझ नहीं पाते। जब तक कुछ नेगेटिव नहीं होता, नेगेटिविटी नहीं आती है, हम पॉजिटिविटी को नहीं समझ पाते। तो बोथ लाइट एंड डार्क द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स ऑफ एग्जिस्टेंस, ठीक है? हम ये नहीं सोच सकते कि सिर्फ पॉजिटिविटी ही हो, सिर्फ अच्छाई ही हो, सिर्फ लाइट ही हो। अदरवाइज हमें पता ही नहीं चलेगा डिफरेंस कि अच्छाई क्या है, लाइट क्या है, पॉजिटिविटी क्या है। जब तक हम ट्रबल में नहीं आते, तब तक हम जो एक स्मूथ लाइफ है ना, उसको एंजॉय नहीं कर सकते। उसका मज़ा हमें समझ नहीं आता जब तक हम ट्रबल्ड रोड्स पर ना चले हों, राइट? तो बोथ द थिंग्स आर equally important for existence. So in the similar manner, जो आपकी गट फीलिंग्स है, आपकी इंट्यूशन है, वो आपको फॉलो करनी है बेसिकली, बिकॉज यू आर एन इंट्यूटिव पर्सन। आपको लोगों के जो रूट कॉज हैं प्रॉब्लम्स के, सोसाइटी में जो सोशल इविल्स हैं, या
जो भी इश्यूज हैं सोसाइटी में, सोशल प्रोग्रामिंग की वजह से जो इश्यूज आ जाते हैं ह्यूमन बीइंग में या एनिमल्स में, डेफिनेटली आपकी इंट्यूशन उधर वर्क करेगी, बट यू हैव टू बैलेंस इट विद द लॉजिकल ब्रेन कि उस कंडीशन में जो आप देख रहे हो उसमें आपको प्रैक्टिकली क्या मेजर लेने की ज़रूरत है, क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है, एंड यू नीड टू टेक दैट एक्शन, राइट। आपको वो एक्शन लेना है। अगर आप किसी को प्रॉब्लम में देख रहे हैं, आपको उनकी हेल्प करनी है। आपको इनर वर्क फॉर श्योर करना है। यू हैव टू एनहेंस योर एम्पैथेटिक स्किल्स, जैसे कि मिस निधि खन्ना की रीडिंग में भी था। एंड आई सजेस्ट यू बोथ कि इनर वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ ऑफ यू, बिकॉज यू बोथ नीड टू इन्वेस्टिगेट द थिंग्स, और क्लैरिटी के लिए इनर वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरों की जो आप एनर्जीज लाइक एब्जॉर्ब कर लेते हैं ड्यूरिंग काउंसलिंग एंड ऑल, उसके लिए भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मेडिटेशन, आप अपना इनर वर्क वगैरह करते रहें, बिकॉज अदरवाइज यू मे गेट कंफ्यूज ड्यू टू अदर्स एनर्जीज। तो जो क्लैरिटी है वो आपको, क्लैरिटी, काम और जो आपकी हायर हायर सेल्फ से जो आपका कनेक्शन होगा, दैट विल बी एनहेंस्ड when you will be always continuing your inner work. So inner work is very important. जैसे मैंने आपका कार्ड उठाया था ना, inner work was the first word which came to my mind. निधि खन्ना की रीडिंग में भी हुआ था, but I told her to enhance her empathetic skills for you too. ठीक है, तो हमेशा जो भी आप प्रॉब्लम देख रहे हैं सोसाइटी में, उसमें आप थोड़े से डीप एस्पेक्ट से, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से उस इशू को देखने की कोशिश कीजिए। जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन है उसको अनकवर करने की कोशिश कीजिए, इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कीजिए, और हेल्प कीजिए। पहले तो अपना इमोशनल, अपनी प्रिपेयर्डनेस आपकी ज़रूरी है, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली। उसके बाद यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट द थिंग कि आप क्या करने वाले हो इस इशू में, आपको क्या करने की ज़रूरत है, चीज़ों को बैलेंस किया कैसे जाए, और क्लैरिटी लोगों को भी कैसे प्रोवाइड की जाए कि इस सिचुएशन में वो क्या कर सकते हैं, राइट। लोगों को हेल्प कैसे की जाए। सो बेसिकली आपका जो काम है वो लोगों को, आपको नॉलेज भी देनी है कि उन्हें इस सिचुएशन में क्या करना है, एंड इफ़ यू कैन हेल्प समवन हु कैन नॉट हेल्प हिमसेल्फ और हर सेल्फ, जो कि खुद ही हेल्पलेस है, लाइक पुअर पीपल होते हैं या बहुत सारे चैलेंज पीपल होते हैं, हेल्पलेस लोग होते हैं, यू हैव टू हेल्प देम। और जो लोग भी आपके पास आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेके, दोज हु कैन अफोर्ड योर सर्विसेज, यू कैन गिव देम काउंसलिंग्स, यू कैन हेल्प देम। ठीक है, उनको इमोशनल सपोर्ट कर सकते हो आप, काउंसलिंग प्रोवाइड करके, उनको नॉलेज दे के, उनको विजडम दे के। जो आपका विजनरी कार्ड है वो भी यही कहता है दैट यू हैव अ ब्रिलियंट माइंड, और हमेशा इट्स लाइक यू हैव टू सी लाइफ फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। जब भी आप किसी सिचुएशन को देखोगे, एट वंस यू कांट रिएक्ट। एक तो वो सही तरीका नहीं होता है, सेकेंडली किसी भी सिचुएशन का रूट कॉज समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक हायर पर्सपेक्टिव से उसे देखा जाए। कई बार हम कुछ चीज़ें अच्छे के लिए करते हैं, बट एक गलत वे में वो डेवलप हो जाती हैं, या एक गलत रिजल्ट उसका आ जाता है, तो वी कांट सिंपली रिएक्ट कि ये क्या हो गया है, ये क्या कर दिया है। वी हैव टू सी इट फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव के मे बी कुछ अच्छा करने के लिए कुछ एफर्ट किया गया हो विच डिडंट टर्न आउट वेल। तो यू हैव टू सी थिंग्स फ्रॉम अ हायर एंड ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। विजन ब्रॉडर होना चाहिए जब आप लोगों को काउंसलिंग देते हैं, या जब आप समाज में जो बुराइयां हैं उनको दूर करने निकलते हैं। अभी व्हेन यू विल स्टार्ट योर वर्क, तो आपको बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जो आपको लगेगा कि सडनली मैं ऐसे कैसे कर लूँ, मैं सडनली किसी को काउंसलिंग कैसे दे दूँ, किसी ने कुछ पूछ लिया, मुझे नहीं पता चला, तो मैं क्या करूँगी, या मैं किसी की हेल्प करने गई और मैं प्रॉपरली नहीं कर पाई, तो मैं क्या करूँगी। बट you have to step into that field, that must be unknown to you, but
that carries a lot of light. Okay, आपको उस पोर्टल में स्टेप इन करने की ज़रूरत है बेसिकली. एंड वंस यू विल बी डूइंग योर वर्क, every resource, every knowledge will reach you, and you will be able to provide help to the people. But for sure, you have to keep enhancing your own skills, your empathetic skills, your knowledge, your wisdom. Knowledge gain करते रहिए, inner work continuation में रखिए. You will gain all the clarity, all the knowledge. Okay, and हमेशा अपने बिलीफ सिस्टम को एक्सपेंड करने के लिए आप जो कुछ भी कर सकते हैं ना, लाइक गेनिंग नॉलेज, गेनिंग एक्सपीरियंसेस, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च वर्क यू हैव टू डू. ठीक है, क्योंकि व्हाट हैपन्स ना, कई बार हम लोग सोचते हैं वी डेवलप आवर ओन बिलीफ सिस्टम. हमारी लाइफ में जो कुछ भी चला होता है अकॉर्डिंग टू दैट, कि इस सिचुएशन में ऐसा होता है, ये चीज़ आई है सामने, तो इसके पीछे यही रीज़न होगा. इट्स नॉट लाइक दैट. हर चीज़ के पीछे 100 रीज़न होते हैं. हर किसी का लाइफ स्पैन अलग है, हर किसी की लाइफ की स्टोरी अलग है, हर किसी की जर्नी अलग होती है, हर किसी की पास्ट लाइफ अलग होती है, हर किसी का जो फैक्टर्स हैं ना, जो संस्कार क्रिएट करते हैं, लाइक पास्ट लाइफ, एंसेस्टर्स, डीएनए, उनका अपना जो है पेरेंटल इश्यूज, उनके फ्रेंड सर्कल, उनका नेबर, उनका उनके सिबलिंग्स का जो एनवायरनमेंट होता है घर का, या उनकी लोकेलिटी का एनवायरनमेंट, ऑल दीज फैक्टर्स कंबाइन इनटू संस्कार. इसी की वजह से एक पर्सन की थिंकिंग क्रिएट होती है या बिहेवियर क्रिएट होता है बेसिकली. सो हम लोग एक बिलीफ सिस्टम कैरी कर लेते हैं कि इस पर्सन ने ये किया तो ये गलत है, इसने ये किया तो ये सही है, विच इज़ नॉट एक्चुअली राइट. वी हैव टू समटाइम्स ब्रॉडन आवर बिलीफ सिस्टम. उसको एक्सपेंड करना पड़ता है, अपने पर्सपेक्टिव को एक हायर लेवल से देखना पड़ता है, एक ब्रॉडर विजन के साथ देखना पड़ता है कि अगर ये पर्सन हमें गलत लग रहा है, इससे कुछ हो गया है, इसके पीछे बेसिक स्टोरी क्या चलती आ रही है, क्या जर्नी है, क्या स्टोरी है, क्या रूट कॉज हो सकता है, कहाँ से क्या इशू डेवलप हुआ, और इसका कैसे इस तरीके का सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाए जिससे कि इस पर्सन की लाइफ से भी वो नेगेटिविटी दूर हो जाए, और अगर इसकी वजह से किसी की लाइफ में या सोसाइटी में एक नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है तो वो भी दूर हो जाए. बेसिक जो रिजोल्यूशन है वो करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि सोसाइटी से ईविल्स को ख़त्म किया जाए, या जो भी सोशल प्रोग्रामिंग की वजह से किसी पर्सन की लाइफ में जो नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है उसको ख़त्म किया जाए. सो योर कार्ड्स आर अबाउट काउंसलिंग उन लोगों की विच नीड योर हेल्प. ठीक है, और उसकी अर्निंग से आप जो नीडी लोग हैं उनको हेल्प कर सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स अपने विजडम से आप जब आप अपना विजडम प्रोवाइड करते हैं लोगों को बाय मेकिंग अ चैनल और पोस्टिंग योर वीडियोस, या लोगों की काउंसलिंग्स लेके, या कोई भी कुछ भी प्रोग्राम, छोटा छोटा प्रोग्राम या बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके, वंस यू आर एबल टू अर्न, यू कैन हेल्प अदर पीपल ऑल्सो. आप उनको उनकी नीड की चीज़ें प्रोवाइड करके you can be close to them, and you can get to know about their problems. आप उनकी प्रॉब्लम में उन्हें इमोशनल सपोर्ट, उनको लाइक some sort of physical guidance, उनको mental support, उनको knowledge, और जो भी उनको हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं, you will be able to do. ठीक है, तो if you are earning, then of course you need to do this work, and if you are not earning currently, तो you can start counselings. बेसिक वर्क जो आपका है वो अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस स्प्रेड करना है, जिससे कि दो चीज़ें रिजॉल्व हो. एक तो सोसाइटी में अगर कोई नेगेटिविटी है वो रिजॉल्व हो, दूसरा अगर सोशल प्रोग्रामिंग की वजह से कुछ लोगों की लाइफ में नेगेटिविटी आ जाती है वो रिजॉल्व हो जाए. एंड ये दो रेजोल्यूशंस आपके जो लाइफ पर्पस हैं, एंड अलॉन्ग विद दैट जो भी आप जिसकी भी हेल्प कर सकते हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, एंड फाइनेंशियली एज वेल, you have to do it with your earnings. If counselings are the basic part of your reading.
right? Miss Jayashree Bhosle. Thank you so much. Guys, I feel I explained it well. आप लोगों को सबको समझ आ गया होगा कि आपका लाइफ पर्पस सोल पर्पस क्या है बेसिकली एंड यू कैन स्टार्ट योर वर्क लाइक दैट इनिशियली आप बहुत छोटे लेवल से भी शुरुआत कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर कन्वीनियंस एंड ग्रेजुअली ट्रस्ट मी जब आप अपना काम स्टार्ट करेंगे तो आपको सारी नॉलेज उससे रिलेटेड सारा विजडम सारी हेल्प डिवाइन के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी बिकॉज you're here to do this work. Okay, you're here with this soul contract and you have to accomplish it, you have to fulfill it. You're here on earth for this reason, right? तो जब आप करेंगे तो पूरी कायनात आपको हेल्प करने वाली है. Okay, and in case anybody of you have any confusions related to your purposes, I have tried to explain it well though, but still, if you guys feel any sort of confusion, you can surely email me on my email ID. Okay, because sometimes comments are missed, so don't think that I don't reply. You can directly email me on my email ID, and you can ask for the email ID on my channel as well. And best wishes for your purpose. Thank you so much. God bless us all. Good night. Bye bye, and lots of love.